آباد پاکستان فائز مال روڈ لاہور سے السلام علیکم. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں انصاف کے حصول کے لیے پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کا دھرنا طاہر القادری کی زیر قیادت شروع ہو چکا ہے. اس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، وہی اصول جس کے تحت آرمی چیف کو ایف آئی آر درج کرانی پڑی تھی، وہ فوجی عدالت براہ راست اپنے اعلیٰ افسران کی نیچے قائم کر کے وہ اس کو اس میں منتقل کر سکتے ہیں. جی میں اس وقت موجود ہوں مال روڈ لاہور پہ، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے منہاج القرآن کی خواتین کی بہت بڑی تعداد. یہاں پر طاہر القادری صاحب کا صرف انتظار کیا جا رہا ہے. خواتین کارکنان کی اور مرد کارکنان کی کافی تعداد یہاں پر جمع ہو چکی ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 17 جون 2 سال پہلے جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اور جس کا کیس بھی ابھی لاہور کی عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن انصاف نہ ملنے کے مطالبے پر طاہر القادری صاحب آج یہاں پر عوامی تحریک اور منہاج قرآن کے کارکنان کے ساتھ دھرنا دیں گے. دھرنے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. صرف طاہر القادری کا اور دیگر عوامی تحریک کے اور منہاج القرآن کے لیڈران کا یہاں پر انتظار ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ شاید وہ 9:30 بجے تک تشریف لائیں گے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ 11 بجے تشریف لائیں گے. لیکن یہاں پہ یہ کارکنان دوپہر سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج ہم یہاں سے جی فار خریدا کا اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسلام آباد دھرنے کے بعد طویل خاموشی اختیار کرنے والے طاہر القادری صاحب کی طرف سے اچانک انصاف کے حصول کے لیے لاہور میں دھرنے کے ذریعے صدائے احتجاج بلند کرنے کے انداز نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب عدالتیں موجود ہیں اور جب سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس چل رہا ہے، تو پھر طاہر القادری صاحب انصاف لینے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے اور دھرنے دینے پر ہی کیوں بضد ہیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب کو یا عوامی تحریک کو یا منہاج القرآن کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے، چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آرمی چیف سے بار بار انصاف دینے کا مطالبہ کرنا کیا یہ جمہوری اور آئینی ہے، اور اگر ہے تو طاہر القادری صاحب کی نظر میں کس طرح ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد دھرنوں سے یہ بیان دینا کہ جو بھی مطالبات کی منظوری کے بغیر دھرنے میں سے جائے گا وہ شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود 126 دن کے اندر اندر دھرنا لپیٹ دینا اور اس کے بعد 2 سال بعد اب پھر دھرنا کر دینا. بہت سے سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے اس خاص پروگرام میں، جس میں نہ صرف ہم آپ کی بات کروائیں گے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان سے، بلکہ لیڈر سے بھی بات کروائیں گے، علامہ طاہر القادری صاحب سے بھی آپ کی بات کروائیں گے، اور شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں تو ان سے بھی ہم آپ کی بات کروائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ وفد یہاں پہ آ رہا ہے، اس سے ہم آپ کی بات کروائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چیپٹر، پنجاب کے صدر میاں منظور وٹو نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں گے، ان کی بات آپ سے کروائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آل پاکستان مسلم لیگ، جی ہاں، جنرل پرویز مشرف صاحب کی جماعت وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے، اور صرف حمایت نہیں کر رہی بلکہ وہ یہاں پر اپنی پریزنس کے ذریعے اپنی سپورٹ شو کر رہی ہے، وہ یہاں پر آئے گی تو ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور مال روڈ کے تاجروں سے بھی ہم بات کریں گے کہ چونکہ عید کا سیزن بالکل قریب ہے اور یہ ان کی بکری کا، یہ ان کا پیک کا سیزن ہوتا ہے، تو اس دھرنے سے ان کو ایک دن میں یا ایک شام میں کتنا نقصان ہوگا. لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان سے. خواتین کارکنان یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ان خاتون نے وہی نعرے کا سلوگن پکڑا ہوا ہے جو کہ پچھلے دھرنے میں بھی ہمیں، اسلام آباد کے دھرنے میں بھی جب سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات ہو رہی تھی تو ہمیں یہی نعرے سننے کو ملے تھے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے جی؟ میرا نام قرۃ العین. اچھا جی، آپ کہاں سے؟ لاہور سے ہی ہیں؟ نہیں، ہم جہلم سے آئے ہیں. اچھا، جہلم سے آئے ہیں. آپ نے وہی نعرہ پکڑا ہوا ہے، وہی سلوگن پکڑا ہوا ہے جو پچھلے سال 2 سال پہلے میں نے دیکھے تھے، یہی استعفے کے نعرے، لیکن استعفیٰ لیے بغیر آپ لوگ اسلام آباد سے چلے گئے تھے. اب 2 سال بعد پھر وہی نعرے. ہم آج 17، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج 17 جون ہے، اور 17 جون کو ہمارے 14 شہید جو تھے ہمارے بہن بھائی، ان کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے انصاف کے لیے ہم 17 جون کو یہاں پہ آئے ہیں.
और हम इंसाफ लिए बगैर लेकिन यही इंसाफ लेने आपने इस्लामाबाद में, मतलब इतनी गर्मी में आप लोग, बारिश होती रही, बल्कि मुझे याद है 31 अगस्त की रात को कितनी शदीद चैलेंज हुई थी, आप लोगों ने वो सब बर्दाश्त किया, लेकिन उन सब के बावजूद आप लोग वो धरना छोड़ के चले गए। तो तब इंसाफ नहीं लिया, अब इंसाफ के लिए आप लोग फिर धरने पर आ गए हैं, ऐसा क्यों? हमें पहले भी उन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया, जिन्हें इंसाफ देने का हक है, जो हमें इंसाफ नहीं दे रहे। हम क्या करें, हम गरीब आवाम है, हम नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? हम अपने हक के लिए निकल रहे हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा, ना कोई हमारी बात सुन रहा है कि हम निकले हैं, हमारी बात सुने, हमारे जो जिन्हें हम इंसाफ के लिए निकले हैं, लेकिन ना कोई हमारी बात सुनता है, ना कोई हम किससे अपील करें, हम किसके पास जाएं? निकले, इतनी गर्मी हमारे, आपको मैं एक बात कहूँ, हमारे जेल में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि अफ्तारी क्या है, सहरी क्या है, लाइट है ही नहीं। अच्छा, बहुत से मसाइल हैं आपके, लेकिन इन सारे मसाइल का आप जवाब लेने निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये हिसाब लेने का बात वो भी कर रही थी, हिसाब लेने का ये स्लोगन आपने भी पकड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त अदालतों में हिसाब लिया जा रहा है, आपको पता है ना कि साना मौलवी टाउन का केस चल रहा है अदालत में? जी बिल्कुल, हाँ, हम यहाँ चल तो रहा है, बजाय तो वो ये दिखाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो जैसे आप इनसे बात कर रही थी कि भाई इंसाफ मिले बगैर आप धरने से उठ गए हैं, तो हम तो अपने कायद के जैसे, हम तो ये समझते हैं कि जो हमारे कायद ऐलान करेंगे बस हम उनकी क़यादत करेंगे, और हम अपने यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे कायद गलत नहीं है, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे, इंशाल्लाह हम ज़रूर इसके लिए निकलेंगे। और रही बात हमें हुकूमत की वजह से ही तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो जनरल रईस शरीफ हैं उनकी से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो हमें ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे, और उनकी वजह से हमने धरना भी उन्हीं की वजह से उठाया था कि उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अच्छा, जनरल राहील साहब ने कैसे मदद की थी पिछले धरने में, आप क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की थी हमारे कायद के साथ, और बहुत ही हमें हौसला वगैरह दिया था। तो ज़ाहिर है इतनी मुख्तलिफ थी तकलीफ़ात उठाने के बावजूद भी हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते। तो अभी आपको दोबारा जनरल राहील शरीफ साहब से उम्मीद है कि वो आपको इंसाफ दिलवाएंगे? हाँ जी, उन्हीं से है, क्योंकि हमारी हुकूमत तो खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हुकूमत पे आपको एतमाद नहीं है, चले मान लेते हैं, वो आपका हक भी है एतमाद ना करना, लेकिन अदालतों पर भी आपको एतमाद नहीं है? अदालतों पे है, क्यों नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जरूर करेंगे इंशाल्लाह, उनकी भी हेल्प करेंगे, हमारा अपना पाकिस्तान है, हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर कारकुनान की बात आपने सुनी, लाहौर से ही नहीं बल्कि दीगर शहरों से भी कारकुनान ख़वातीन यहाँ पे आई हैं, और वही बात जो कि तारुल कादिर साहब कहते रहे हैं, पिछले धरने में भी कहते रहे हैं, और जैसे वो पाकिस्तान आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि उन्हें जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ साहब से इंसाफ की तवक्को है। तो कारकुनान भी अपने कायद की बात पर ही बजिद हैं। कुछ मजीद ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ख़वातीन कारकुनान, मर्द कारकुन यहाँ पर काफ़ी देर से पहुँच गए हैं, दोपहर से पहुँचे हुए हैं रोज़े की हालत में। अल्लामा तारुल कादिर साहब रोज़ा इफ्तार करने के बाद अपने घर से इस वक्त रवाना हो चुके हैं, कुछ देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, उनके लिए कंटेनर भी पीछे तैयार है, वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे, स्टेज भी हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन पहले जरा कारकुनान से बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपने स्लोगन पकड़ा हुआ है, आप क्या चाहती हैं आज धरने से? इंसाफ चाहते हैं, खून का हिसाब चाहते हैं। जब ये लोग बात करते हैं ना, तारुल कादिर इतने महीने बैठे और इनकलाब नहीं, हमें कोई परेशानी भी नहीं है। अब हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई टेंशन भी नहीं है। इंशाल्लाह कभी इंसान कोशिश करता है, कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी अदालतों में लगा हुआ है ना केस। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक खुद इंसाफ ले आएगा। नवाज शरीफ सारी जिंदगी नहीं अपनी वजीर आजम बनेगा, आकर एक दिन इंसाफ के कचहरे में आएगा, अल्लाह ताला हमारे खून का बदला जरूर देगा। अच्छा, आप कब तक बैठे रहेंगे? वैसे तो धरना सारी के बाद खत्म करना है। कैद क्या सारी जिंदगी हम बैठे रहेंगे, हमें कोई परेशानी भी नहीं है। हम अपने कपड़े बैगों में डाल के आए हैं, सब सामान लेके आए हैं। अगर हमारा कैद क्या बैठे रहे तो हम बैठे हैं। अच्छा जी, ये खबर नहीं जाएंगे, हम इधर बैठे हैं, तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। अच्छा जी, ये खवातीन कारकुनान तो बिल्कुल वैसे ही चार्ज हैं जैसे आपने इनको पिछले धरने में देखा था, और अगरचे ये वाला धरना जो है कहा गया है कि सारी के बाद खत्म हो जाएगा, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही एश्योरेंस दी गई है अवामी तहरीक की तरफ से, लेकिन खवातीन कारकुनान का आज़म ये है कि अगर उन्हें कहा जाएगा तो वो फिर लंबे अरसे तक यहाँ बैठी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं? रेहाना यासीन कादरी सरगोदा से आए हैं। अच्छा, आप सरगोदा से तशरीफ लाई हैं। आपको तो मैंने पिछले धरने में भी देखा था। हाँ जी बिल्कुल देखा था, हम लोग पूरे 2 महीने वहाँ बैठे रहे थे। लाहौर से इस्लामाबाद हम बैठे रहे थे। देखिए कितना लंबा बैठे था कि मुझे आपकी शक्ल याद हो गई है। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, हम सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे याद है पिछले धरने में भी आप कंटेनर के बिल्कुल साथ बैठी होती थी। लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी, रबड़ की शेलिंग होती थी, बारिश होती थी, धूप होती थी, आप कंटेनर के साथ लग के बैठी होती थी। बैठे होते थे बिल्कुल। हम पहले जब बैठे थे अब भी इसी तरह हम डट कर बैठे रहेंगे, क्योंकि खून का बदला खून है। हम यहाँ से इनकलाब लेने आए हैं, हम खून का हिसाब लेने आए हैं। जब तक हमें खून का हिसाब नहीं मिलेगा हम इसी तरह अपने कायद के साथ शाना बशाना हम लोग चलते रहेंगे। जहाँ हमें हमारे कायद बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे, चाहे वो अंधेरी रात हो, चाहे शैलिंग चले, चाहे गोलियाँ चले, जो मर्जी चले, हम अपने कायद का साथ लेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा जी, ये खवातीन कह रही है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक वो यहाँ पर बैठी रहेंगी। लेकिन तारुल कादिर साहब ने कहा था कि इस्तीफा शायद उनका मुतालबा ना हो, क़िसास उनका मुतालबा हो। लेकिन बहरहाल आज जब वो स्पीच करेंगे तो उनके मुतालबात खुल के सामने आ जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल प्रोग्राम मॉल रोड से चलता रहेगा। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम मॉल रोड लाहौर से, जहां पर पाकिस्तान अवामी तहरीक का मिनहाजुल कुरान का सानह मॉडल टाउन के 2 साल मुकम्मल होने पे धरना शुरू हो चुका है। तारुल कादिर साहब रास्ते में हैं, किसी भी वक्त वो यहां पर पहुंच जाएंगे। मैं इस वक्त स्टेज के बिल्कुल नीचे मौजूद हूं, आपको स्टेज पे ऊपर लेके जाऊंगी, वहां के इंतजाम दिखाऊंगी। लेकिन पहले नीचे के इंतजाम मैं आपको दिखा दूं, मेरे कैमरामैन यासिर दिखा दें कि ये एक चिलर है कि जो कि स्पेशली यहाँ पर लगाया गया है लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्टेज, ताकि तारुल कादिर साहब को गर्मी परेशान ना कर सके और शदीद गर्मी में उन्हें ठंडी हवा मिलती रहे। वो पीछे आप देख सकते हैं, अगर हम आगे आपको लेके आए तो वो कंटेनर तारुल कादिर साहब पर खड़ा हुआ है। ये वही तारीखी कंटेनर है जो कि 2 साल पहले इस्लामाबाद गया था और अब इसकी सफाई सुथराई होकर इसको यहाँ लाहौर लाया गया है। तो अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ स्टेज पर। यह स्टेज जो है 80 फुट लंबा है और 30 फुट ऊंचा है। और स्टेज पर अभी कुछ देर पहले पंजाब पुलिस के आला ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी चेक की है, सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है, क्योंकि तारुल कादिर साहब यहाँ पर किसी भी वक्त तशरीफ ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर ये इंतजामात हैं, VIP सोफाज लगाए गए हैं, नीचे कारकुनान की तादाद आप देख सकते हैं जो कि मामूली कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके आसपास मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो जैसे मैंने आपको दिखाया था तारुल कादिर साहब के लिए चिलर्स लगे हुए हैं, तो आम कारकुनान के लिए नीचे पंखे लगे हुए हैं हवा के। तो ये जनाब इंतजामात है। 80 फुट लंबा ये चौड़ा स्टेज है, जिसके पीछे बहुत बड़ा बैनर लगाया गया है कि यौम शोहदा मॉडल टाउन, 17 जून 14 खून और कहाँ है कानून। तारुल कादिर साहब आएंगे तो उनसे हम सवाल करेंगे कि इसी कानून के निज़ाम के तहत तो लाहौर में अदालत में केस चल रहा है, तो फिर वो सड़कों पे आके क्यों एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ हमारे रिपोर्टर उमर याकूब मौजूद हैं। ये सुबह से कवरेज कर रहे हैं आज और बड़ी मेहनत के साथ कवरेज कर रहे हैं मॉडल टाउन में सानहे के लिए यहाँ पे धरने की। उमर, एक तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अवामी तहरीक ने कहा था 15,000 कुर्सियां लगाई हुई हैं, अंदाजन कारकुनान की तादाद कितनी हो सकती है? जी गरीदा, अभी तक तो जो कारकुनान आ चुके हैं 2-2.5 हज़ार कारकुनान आ चुके हैं अभी तक, और शाम 6 बजे उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। 6 बजे के वक्त दोपहर से आ रहे थे? नहीं, 6 बजे का वक्त दिया गया था और 6 बजे से कुछ देर पहले उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर उन्होंने इफ्तारी भी यहाँ पर की और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो चुका है। आप देखें, शेरिंग क्रॉस से रीगल चौक तक इन्होंने ये जो पंडाल बनाया है वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ पे सारे इंतजाम किए गए और वहाँ ये चेयरिंग क्रॉस से रीगल चौक तक अंदाजन कितने किलोमीटर बनता है? ये 1 से 1.25 किलोमीटर का फासला है जिसको इन्होंने कवर किया हुआ है। तो 1 से 1.25 किलोमीटर में 15,000 कुर्सियां आ सकती हैं? टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनका दावा है कि यहाँ पर 15,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। बल्कि इसके अलावा वो नासिर बाग तक इन्होंने इंतजाम किया, वहाँ पर लोग जो जमा होकर यहाँ पर अपने कायद की स्पीच सुन सकते हैं। अच्छा, और तारुल कादिर साहब के बारे में सुना जा रहा है कि वो पहुँचने वाले हैं? नहीं, वो तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पर आएंगे। घर से निकल गए हैं उमर? नहीं, घर से निकल चुके हैं तारुल कादिर साहब। अच्छा, हाँ, आप तो चूंकि यहाँ कवरेज कर रहे हैं ना, वो घर से निकल चुके हैं, हमने दिखाया भी है कि तारुल कादिर साहब अपने घर से निकल चुके हैं। हमें इतलात मिली थी वो यही मिली थी कि वो तरावियां पढ़ने के बाद घर से निकलेंगे। दीगर जो कायदीन है, दीगर ओपोजिशन जमातों के जो कि हुकूमत के जो इत्तेहादी नहीं है, उन जमातों के कायदीन के साथ यहाँ पर आएंगे और धरने का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, तो बहरहाल खैर अभी तो वो घर से निकल चुके हैं। और कौन कौन से कायदीन हैं दीगर सियासी जमातों के जो कि स्टेज पे उनके साथ होंगे? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी सरवर होंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से मंजूर
मजदूर वट्टू होंगे, इसके अलावा MQM का एक वफ्द आएगा, इसके अलावा जमात इस्लामी का एक वफ्द है, और इसके अलावा मुत्तहिदा वाहिद मुस्लिमीन का भी एक वफ्द है, वो इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। मतलब वो तमाम जमातें जो हुकूमत की दादी नहीं है, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था और इनके साथ धरने में शामिल होने का भी ऐलान किया था। अच्छा, कादी साहब का प्लान क्या है? कारकुनान से नीचे मैंने बात की है, वो कहते हैं कि जी हमारे कायद जब तक कहेंगे हम बैठे रहेंगे। वैसे तो सहरी तक धरना खत्म कर देने का है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो हुकूमत के साथ इनका मुआहदा हुआ है वो तो यही है कि सहरी के वक्त तक ये एहतजाज करेंगे, उसके बाद पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये मजहबी जमात का एक धरना है और ये इनके कारकुनान पॉलिटिकल जमातों से जरा मुख्तलिफ होते हैं। इनके कायद ने जो कह देना है इन्होंने उस पर डट जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लास्ट टाइम भी आपको 2014 में जो धरना दिया गया था उसमें भी यही हुआ था कि लेके वहां पर गए थे और कितने दिन तक धरना जारी रहा था। लेकिन तब तक तो कोई टाइम पीरियड, कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि हम इस वक्त तक वापस आ जाएंगे। अभी तो मुआहदा हुआ है कि सहरी के बाद खत्म कर देंगे। लग तो यही रहा है, लेकिन कादरी साहब पे डिपेंड करता है सिर्फ। लेकिन जो कंटेनर पीछे खड़ा हुआ है मुझे वो खतरे की अलामत लग रहा है। एग्जैक्टली आप देखें कि जिस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं ये चंद घंटों के लिए नहीं हो सकते। खाने का वसी इंतजाम किया गया है, सहरी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है और इसके अलावा पानी का और दीगर यहाँ पर जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, इनके कारकुनान आ रहे हैं, उनके लिए भी इंतजाम किया गया। मतलब इनकी तैयारियां तो बहुत ज्यादा है। इसमें यहाँ पर एक पर्सन आपको शक लगता है कि किसी भी वक्त फैसला जो है चेंज हो सकता है और ये धरना जो है 1% शक भी बहुत खतरनाक हो सकता है हुकूमत के लिए। लेकिन ये बताइए कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि पुलिस के आला ऑफिसर्स यहाँ पे आके सर्वेलेंस करके गए हैं। जी बिल्कुल, पहले तो ये उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे पुलिस पर और कह रहे थे कि हम खुद ही करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शाहरा है, यहाँ पर सिक्योरिटी इनको फराम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जिले इंतजामिया ने भी इनको प्रॉपर जो है सिक्योरिटी फराम करने की जो गारंटी दी है। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है, स्नाइपर्स मौजूद है, खारदार तारे लगाई गई हैं, वॉक थ्रू गेट्स दिए गए हैं। मतलब प्रॉपर मैक्सिमम वो चीजें जो एक सिक्योरिटी फराम करने के लिए फराम की जाती हैं वो पुलिस ने दी हैं। मतलब उनकी तरफ से तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन ये लोग अपने 1000 रजाकार सिक्योरिटी के जो मर्द हैं और इसके अलावा खवातीन 500 जो खवातीन के निगरानी करेंगी और 1000 मर्द रजाकार जो मर्दों की निगरानी करेंगे। इनकी अपनी सिक्योरिटी भी है, इसके साथ साथ पुलिस की भी है। अब सिक्योरिटी इंतजाम तो काफी तसल्ली बख्श हैं। ठीक है उमर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। आपसे हम मजीद बात भी करते रहेंगे। इस वक्त हम आपको लेके चलते हैं कि चूंकि बताया जा रहा है कि तारुल कादी साहब की यहाँ पर आमद किसी भी वक्त हो सकती है और उनके साहबजादे हुसैन मोहिउद्दीन भी यहाँ पर आ सकते हैं। अवामी तहरीक के लीडर्स यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ करवा दीजिएगा व्यूअर्स के लिए। जी, मैं नूरुल्लाह सिद्दीकी, मर्कजी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ पाकिस्तान अवामी तहरीक का। अच्छा नूरुल्लाह साहब, ये बताएं कि तारुल कादी साहब कब तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे? वो 9 बजे तक इंशाल्लाह यहाँ पे होंगे और नमाज इशा भी यहाँ पे अदा करेंगे और नमाज तरावी भी यहाँ पे अदा करेंगे। कारकुनान की इमामत फरमाएंगे वो कोई भी इमामत कर सकता है और कोई भी स्कॉलर यहाँ पे इमामत करेगा, लेकिन वो यहाँ पे नमाज अदा करेंगे, नमाज तरावी। और तकरीर कब तक मुतवक्के है उनकी? अल्लाह ताला 11:30 और 12 के दरमियान वो तकरीर उनकी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों का प्लान क्या है कि सहरी के बाद खत्म कर देंगे धरना? इंशाल्लाह ताला इसका ऐलान डॉक्टर साहब करेंगे अपने खिताब में कि ये एहतजाज किस शक्ल का है, कब तक है, ये डॉक्टर साहब अपने खिताब में करेंगे इसका। अभी भी कंफर्म नहीं है कि कब तक है ये एहतजाज? कंफर्म ही है, डॉक्टर साहब के खिताब से पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर में अदालत में केस चल रहा है, पहले ही मॉडल टाउन का, और मुसलसल उसकी हियरिंग्स चल रही हैं। एक तरफ अदालतों में केस चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अदालत में कोई केस नहीं चल रहा। अदालत में वो केस चल रहा है जो पुलिस ने चलान पेश किए थे। पुलिस ने हमारे 42 कारकुनों को मुलजम और दहशतगर्द करार देके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलान भेज दिया। पुलिस के जमा करवाए गए चलान के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो मजलूमों की तरफ से, शहीदों के वरसा की तरफ से जो FIR दर्ज हुई थी उस पर 1 इंच पेशरफ्त नहीं हुई टिल देन टुडे। लेकिन फिर वो 2 साल क्यों खामोश रहे? मतलब वो जो एक साना है, जब एग्रीमेंट हुआ था जिसमें आर्मी चीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया था, उस एग्रीमेंट में सारा मॉडल टाउन की FIR कट गई थी, तो 2 साल तक फिर खामोशी क्यों रही और 2 साल बाद क्यों ये एहसास हुआ कि इंसाफ नहीं मिल रहा? देखें, FIR कट जाने के बाद हमें पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का इल्म है कि वो एक बड़ा ताखीरी डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ होता है। तो हम वक्त देना चाहते थे ताकि हमें पता चले कि अगर हमें इंसाफ मिलना है तो हम। आप अदलिया पर सवालात उठा रहे हैं, अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। नहीं, हमें अदलिया पर हम सवाल नहीं उठा रहे। जो पुलिस ने तफ्तीश की है, जो चलान पेश किया है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। अदलिया ने तो उन सबूतों की बुनियाद पर फैसले करने होते हैं जो ट्रायल में आते हैं, जो चलान में पेश किए जाते हैं। और जो चलान पेश किया गया है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के उन लोगों पर केस दायर किया गया है जो जख्मी थे, जो चश्मदीद गवाह थे, जो शोधा के वरसा थे। पुलिस ने उन्हें सानिया का मुजरम और मुलजम करार दिया है। हमें इस पर एतराज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल्लाह साहब की बात आप सुन रहे थे। बताया जा रहा है कि तारुल कादरी साहब यहाँ पर तशरीफ ले आएंगे 9 बजे और उनके साथ
साथ ही बल्कि उनके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता दीगर जो सियासी जमातें हैं जो कि इत्तेहादी हैं आज के धरने की, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, MQM का नुमाइंदा वफ्द यहाँ पे आ रहा है, वो सब लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वो पहले आ गए तो उनकी बात आपसे करवाएं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ये स्पेशल प्रोग्राम मॉल रोड से चलता रहेगा। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम मॉल रोड लाहौर से। मेरे पीछे आप स्टेज देख सकते हैं कि वहाँ पे हुसैन मोहिउद्दीन साहब, तारुल कादरी साहब के जो बड़े साहबजादे हैं वो तशरीफ ला चुके हैं और उनके आते ही यहाँ पर कारकुनान पुरजोश हो गए हैं, नारे लगवाए जा रहे हैं, तराने बजवाए जा रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप खवातीन कारकुनान को देख सकें तो सब खड़ी होके, मर्द कारकुनान सब खड़े होके इस्तकबाल कर रहे हैं पुरजोश अंदाज में। यहाँ पर अवामी तहरीक का मौक़िफ़ तो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत और नून लीग का मौक़िफ़ क्या है धरने के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब, और धरने की इजाजत तो दे दी है आपने अवामी तहरीक को, लेकिन क्या उनके धरने के मुतालबात भी मानेंगे? देखिए, उनकी जो मुतालबात है बुनियादी तौर पे तो वो ये फरमा रहे हैं कि उनके साथ जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा और उनके जो मुकदमा है मॉडल टाउन से मुतल्लक उसका जो है वो कह रहे हैं कि उसके मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि हकीकत ये है कि इन्होंने जो FIR अदालत के नज़रिए से इस मामले में दर्ज करवाई थी, उस FIR की इन्वेस्टिगेशन हुई जो GIT ने की। उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में 9 पुलिस के लोग, जिनमें ऑफिसर और कांस्टेबल हैं, और 42 पैट के वर्कर जो हैं वो उस बल्बे और उस वाक़े की पादाश में चलान हुए। वो मुकदमा जो है इस वक्त ज़ेरे समाअत है एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर की जज। लेकिन अवामी तहरीक का मौक़िफ़ है कि उस मुकदमे पे पंजाब हुकूमत प्रेशर डाल रही है। देखिए, पंजाब हुकूमत अगर अदलिया को प्रेशराइज कर सकती होती तो फिर हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज होता, या अगर हम प्रेशर की पोजीशन में होते तो फिर क्या वज़ीर आज़म से लेके मुझ तक विदाउट नोटिस, यानी हमें नोटिस तक नहीं किया अदालत ने और हमारे खिलाफ पर्चे का हुक्म दिया। हम हाई कोर्ट में अपील में गए, वहाँ पे ये भी पेश हुए, लेकिन अदालत ने कहा कि ये मुकदमे का अंदराज जो है वो किसी को मुजरम या मुल्ज़म नहीं बनाता, इससे सिर्फ तफ्तीश होगी, आप जाएं जाके शामिल। ठीक है, अवामी तहरीक का राना सनाउल्लाह साहब ये भी मुतालबा है कि आप जुडिशल रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? जी, इसमें जस्टिस नजफी साहब का कमीशन कायम हुआ था 19/6/2014 को। अभी उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ था कि 1/7/2014 को तकरीबन 10 दिन बाद उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को बराए समाअत जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद उसके ऊपर लार्जर बेंच बन गया। अब लार्जर बेंच जो है वो इस बात की समाअत कर रहा है कि क्या जस्टिस नजफी की बतौर इंक्वायरी कमीशन अपॉइंटमेंट दुरुस्त थी या नहीं थी। अब लीगल राय ये है एडवोकेट जनरल ऑफिस की और लॉ डिपार्टमेंट की कि जब तक इसका फैसला ना हो जाए आप रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर सकते। यानी अगर कल को फैसला ये होता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल थी तो फिर व्हाट टू दैट रिपोर्ट, तो इसलिए वो लार्जर बेंच में मामला सब जुडिस है। अगर लार्जर बेंच उस अपॉइंटमेंट को लीगल करार देगा तो साथ ही रिपोर्ट को भी जो है वो पब्लिक कर देगा, अगर नहीं देगा तो उसको पब्लिक नहीं करेगा। रिपोर्ट की मुसद्दका कापी जो गवर्नमेंट को मौसूल हुई थी वो हमने लार्जर बेंच को सबमिट कर दी। इसमें ये जुडिशल जो है वो हर्डल है, इसमें कोई गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ना किसी चीज को छुपा रही है। वैसे मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह दूं कि वो रिपोर्ट जो है वो वैसे अब कोई खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं है। वो रिपोर्ट जो है वो जिनके पास थी उन्होंने तमाम चैनल्स के ऊपर उसकी कॉपियां भिजवाई, बकायदा उसके ऊपर प्रोग्राम राना साहब वो तो लीक हुई थी, राना साहब वो तो लीक हुई थी, बाज़ाब्ता तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पब्लिक करना। जी, वो बाज़ाब्ता जो है वैसे तो खैर वो यानी अब सीक्रेट नहीं है, लेकिन वो बाज़ाब्ता जो है वो जो लार्जर बेंच है हाई कोर्ट का उसके फैसले के मुताबिक ही जो है वो पब्लिक हो सकती है। अच्छा, क्या कोई बात हुई थी कादरी साहब से, हो रही है कादरी साहब से? अगर धरना उन्होंने खुदा न खास्ता लंबा कर दिया तो कोई बातचीत चल रही है?
देखिए, इसलिए ये है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस बारे में गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि माल रोड जो है वहाँ पे तमाम तबकात के लोग, वो टीचर्स हों, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, किसान हों, वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए आते हैं और गवर्नमेंट ने हमेशा उनको फैसिलिटेट किया और आज तक किसी के खिलाफ कोई ताकत का जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए इसी पॉलिसी के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ये कह दिया गया है कि वो इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राणा साहब मेरा सवाल कुछ और है। 2 साल पहले जब धरना खत्म हुआ था तो बड़ी अफवाहें, बड़े इल्जामात लगे थे कि कादरी साहब कोई डील करके गए हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ, कोई अरबों रुपए लेकर गए हैं। क्या कोई ऐसी डील हुई थी, क्या कोई ऐसी बात हुई थी? क्या पंजाब गवर्नमेंट उससे पब्लिक करेगी उस बात को या उस एश्योरेंस को? देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो अवामी तहरीक के जो अकाबरीन हैं उनके साथ हमारी इस सिलसिले में जो है बात होती रही है और हो सकता है वो आइंदा भी हो, लेकिन ऐसे मामलात को फिर इस तरह से आश्कार करना जो है या उस गुफ्तगू को पब्लिक करना जो है, मैं समझता हूँ कि वो अखलाकी तौर पे जो है वो दुरुस्त अमल नहीं है। वो जब हमने बैठ के जो भी बात की है वो अमानत है हमारे लिए भी, उनके लिए भी, उसके ऊपर कमेंट करना जो है वो मैं इसका मतलब है कि कादरी साहब ने कोई एश्योरेंस दी थी कि हुकूमत के खिलाफ कोई एजिटेशन नहीं करेंगे वो आइंदा। अब ये बात जो है, अब इस तरह से तो जो मैं बात नहीं करना चाहता वो आप इस तरह से तो मुझसे ना चलवाएं। अब राणा साहब कोई हाँ या ना में जवाब दे दें। नहीं, देखिए, जब एक गुफ्तगू दो फ्रीकैन के दरमियान हो तो जब तक ये तय ना हो उस वक्त तक उसको पब्लिक करना जो है ये तो इंतहाई यानी फिर गैर अखलाकी बात है। ये गुफ्तगुएं जो है वो इन लोगों के साथ हमारी पहले भी हुई, अब भी हुई। अच्छा, राणा साहब कोई खबर आई है कि कादरी साहब के भी कोई ऑफशोर अकाउंट्स, कोई ऑफशोर कंपनीज हैं, उसके बारे में जरा शेयर कीजिएगा। ये वैसे मैं समझता हूँ कि ये सारे मीडिया को ये खबर पहुंच चुकी होगी अब तक, क्योंकि हमें भी जो वहाँ पे लंदन बेस्ड एक जो है वो मीडिया रिपोर्टर ने जो है वो ये चीज रिपोर्ट की है और उन्होंने ये पूरी तरह से ये दावा किया है कि, और साथ उन्होंने एविडेंस भी दी है कि 9 के करीब जो है वो ऑफशोर कंपनी जो हैं वो मौलाना डॉक्टर ताहिर फासी साहब के, इनके बेटे जो हसन महिउद्दीन और हुसैन महिउद्दीन और इनकी जो डॉटर इन लॉ हैं और इनकी जो बेगम साहब हैं उनके नाम पे ऑफशोर कंपनीज हैं और 13 के करीब प्रॉपर्टी जो है वो लंदन में है। इसी तरह से टर्की में और डेनमार्क में, फ्रांस में जो है उन प्रॉपर्टीज के बकायदा जो है वो नंबर उनके महत्व को दिए गए हैं और उनकी जो मालियत है वो अरब रुपयों की जो है वो बनती है। तो अब ये जो इमरान खान साहब धरने में भी शिरकत फरमा रहे हैं और रावलपिंडी के जो हमारे हिदायत अली साहब हैं वो भी शिरकत फरमा रहे हैं, तो जरा देंगे ना जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे, खासतौर पे खबर दे रहे थे कि कादरी साहब की भी ऑफशोर कंपनीज है, तफसीलात बता रहे थे और इशारा दिया उन्होंने हल्का सा कि कादरी साहब कोई 2 साल पहले एश्योरेंस दे के गए थे कि हुकूमत के खिलाफ आइंदा कोई एजिटेशन नहीं करेंगे। बहरहाल मॉल रोड चूंकि ताजरों का गढ़ है तो इस वक्त ताजरों के रहनुमा लाहौर के नईम मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि क्या आज की शाम का आपको अंदाजन कितना नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि ईद का सीजन भी है? देखें जी, नुकसान आज की शाम का नहीं है बल्कि आज सुबह से नुकसान हो रहा है। चेरिंग क्रॉस से रीगल चौक तक का एरिया जो है ये कॉर्डन ऑफ कर दिया इन्होंने, कंटेनर्स लगाए, अपनी तैयारियां कर रहे थे, कुर्सियां लगा रहे थे, दुकानें सारी बंद कर दी गई। शाहरा को जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया, जिससे अनारकली मुतासर हुआ, हाल रोड का बिजनेस मुतासर हुआ, जिससे पैनोरामा सेंटर का बिजनेस मुतासर हुआ, जिससे नीला माल रोड और उसके गिरदोनवा जितनी मार्केटें हैं उनके बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा। और बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद था, कानून के रखवाले भी मौजूद थे, लेकिन वो लोग जिन्होंने अमल दरामद करवाना था वो लोग जो है वो इनको फैसिलिटेट कर रहे थे, फैसिलिटेटर बने हुए थे। आज वो लोग यानी SHOs वो हमारी दुकानों पर जो है वो गए हैं और उन्होंने जा के हमारी दुकानों को है और कहा कि अपनी जिम्मेदारी पर दुकानें खोलें वरना पुलिस आपके जानो माल की जिम्मेदार नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस आपकी दुकानें बना रही थी।
आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस आपकी दुकानें बंद करवा रही थी, तो ये बताएं कि अंदाजन पैसों में कितना नुकसान हुआ आपको एक दिन का, जबकि बिक्री का सीजन है, आपका पीक का सीजन है? ये एक दिन में कमोबेश जो इस एरिया की सेल है तकरीबन को 1.5 से 2 अरब रुपए की हो जाती है गिरदोनवा की तमाम मार्केटों की सेल। तो ये तो इतना तो हमारा बिक्री के अंदर नुकसान होता ही होता है, लेकिन देखें इस नुकसान से ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि रोड पर जो जलसे जुलूस है वो बंद नहीं हो रहे। सबसे बड़ा मसला ये है, और आने वाला वक्त जो है वो पीक सीजन का है, उसका नतीजा ये निकलेगा कि और भी लोग जो है वो इस तरह माल रोड पर आएंगे। ये तो बर्बाद हो जाएगा। वो दुकानदार जिन्होंने अपना जेवर बेच के उधार लेके माल खरीदे हैं, स्टॉक किए हैं, माल बेचेंगे और वो कहां से अपने उधार चुकाएंगे, इनको कुछ भी ख्याल नहीं है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मीर लाहौर के ताजिर अनुमा हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि एक दिन में, क्योंकि सुबह से यहाँ पर अवामी तहरीक के धरने की तैयारियां चल रही हैं, तो एक दिन में मॉल रोड के ताजिरों को कम से कम 100 से 150 अरब का नुकसान हुआ है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपकी बात करवाएंगे हुसैन मोहिउद्दीन साहब से। तारुल कादरी साहब के बड़े साहब साथ हैं। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम मॉल रोड पर, जहां पर सानहा मॉडल टाउन के 2 साल मुकम्मल होने पर इंसाफ ना मिलने के खिलाफ अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान का तारुल कादरी साहब की ज़ेर क़यादत धरना और एहतजाज यहाँ पर जारी है। इस वक्त तारुल कादरी साहब के साहबजादे हुसैन मोहिउद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। तारुल कादरी साहब भी कुछ देर में पहुँच जाएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये बताएं कि सानहा मॉडल टाउन पे 2 साल पहले जब धरना खत्म किया था कादरी साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि हमें इंसाफ मिल गया, हमारे मुतालबात पूरे हो गए, कि सानहा मॉडल टाउन की FIR कट गई। अब 2 साल बाद आप फिर वही नारा कि इंसाफ नहीं मिला, जबकि केस चल रहा है। सड़कों पर क्यों आए हैं सर? नहीं, कभी भी हमने इस तरह की बात नहीं की, ना ही उस धरने के दौरान कि हमें इंसाफ मिल गया, क्योंकि पूरी कौम के सामने है कि जिस तरह जुल्म की एक इंतहा की गई 17 जून को, और 79 लोगों को, 14 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया, 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं, उन्हें ज़ख्मी किया गया, और फिर मज़लूमों के ऊपर ही FIR काटी गई, उन्हीं को ही मुजरिम और मुलजिम ठहराया गया। आज तक बेपनाह लोग जो हैं वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और तकालीफ सह रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान अवामी तहरीक को डॉक्टर तारुल कादरी साहब की क़यादत में मुल्क पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे तवील मुद्दत धरना देना पड़ा, और उस तवील धरने से पहले बेपनाह कोशिशें की गईं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की इमा पर पुलिस ने FIR तक मजलूमों की दर्ज नहीं की और एक तवील धरना दिया। उसके नतीजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुदाखलत से एक FIR काटी गई। उस FIR के साथ भी उन्होंने पहले रद्दोबदल करने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर वो काटी गई। तो एक तवील तकलीफ़ों के बाद मुश्किल से सिर्फ मजलूमों की एक FIR काटी गई, जिसे कतन आप इंसाफ नहीं कह सकते, लेकिन आप उस जुल्म को रजिस्टर करवाने की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। तो वो एक तवील मुद्दत धरना दिया गया। उसके बाद लेकिन हुसैन साहब अभी केस चल रहा है ना अदालत में इस मामले पर? अदालत के अंदर केस जिस तरीके के साथ चल रहा है, जैसे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी भी एक ग्रुप के ऊपर एक दफ़ा फर्द जुर्म आयद, 2 मरतबा फर्द जुर्म आयद नहीं होती, लेकिन इस कानून में उनके ऊपर 2 मरतबा फर्द जुर्म आयद की गई है। जो FIR इनकी अपनी है मजलूमों की, उनमें भी उन्हीं को मुलजिम ठहराया गया है, और पुलिस हुक्काम की तरफ से रजिस्टर की गई FIR में भी उन्हीं को मुलजिम ठहराया गया है। उसके अलावा वो जस्टिस बाकिर नजीफी साहब की जो रिपोर्ट है, आज तक उसको शाया नहीं किया गया, उसके खिलाफ हुकूमत ने अदालत में स्टे लिया हुआ है। वो भी चूंकि मामला सब जुडिस है, अदालत उस पर गौर कर रही है कि जस्टिस बाकिर नजफी की अपॉइंटमेंट लीगल थी भी कि नहीं। अदालत ने कहा है कि अभी रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए, अदालत ने कहा है। मैं अर्ज करता हूँ, ये हमेशा से इनके कमीशन बनते हैं, अगर कमीशन खुदा न खास्ता इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दे दे तो उस कमीशन की लीगैलिटी के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कौम अब इतनी बाशऊर है कि उन्हें पता है कि ये असल क्या गेम खेली जा रही है, कौन कातिल है, कौन असल में जिम्मेदार है, किसको छुपाया जा रहा है। इतने अरसे में जो जिम्मेदारान थे उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया, उनको बड़ी बड़ी अहम जिम्मेदारियों से नवाजा गया, और सफाई सतह के लोगों को जेलों में डाला गया, और जितने SSPs थे उनको प्रमोशंस देकर उनको किया गया। इतना बड़ा तारीख का जुल्म किया गया, और उस जुल्म के अंदर फिर इतनी लापरवाही और इंसाफ के नाम पर इतना बड़ा मजाक कौम के साथ किया गया, और फिर इस बात को आज 2 साल गुजर गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर और जमातें होंगी
جن کو انصاف لینا نہیں آتا ہوگا. تو اب آپ کو انصاف کی امید کس سے ہے؟ عدالتوں سے ہے یا آرمی چیف صاحب سے ہے؟ اور لوگ ہوں گے جنہیں انصاف نہیں لینا ہوتا ہوگا اور اپنے لوگوں کا خون معاف کرتے ہوں گے. یہ مظلوموں کا، نہتوں کا خون ہے، یہ ہم معاف نہیں کریں گے. قصاص ہوگا، خون کا بدلہ خون ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری اسٹرگل جاری رہے گی، چاہے وہ مال روڈ ہو لاہور کا، چاہے کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد کا ہو، یا پاکستان کی کوئی اور سڑک یا روڈ ہو. اور جو آپ کا پلان کیا ہے؟ سحری کے وقت دھرنا ختم کر دیں گے یا نہیں؟ پلان کیا ہے؟ اس پلان کے متعلق ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. پھر بھی بتائیں، سحری کے وقت ختم کر دیں گے دھرنا؟ ڈاکٹر صاحب بھی اس کے متعلق بہتر بتائیں گے. مطلب کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے رویے کے اوپر. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر جو کارکنان ہیں وہ افطاری سے پہلے کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے قائد کے انتظار میں، روزے کی حالت میں، شدید گرمی میں، لیکن قادری صاحب افطاری کے بعد تشریف لائیں گے اور یہاں پر ٹھنڈے چلرز بھی لگے ہوئے ہیں، جبکہ کارکنان جو ہیں وہ گرمی میں صرف پنکھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ تو دعوے کرتے ہیں کہ نظام بدلے گا، سرعام بدلے گا، تو ایسا کیوں ہے؟ ذرا سمجھائیے گا. آپ پنڈال میں وزٹ کریں. آپ نے ہمارے پہلے جتنے بھی اجتماعات اور جلسے دیکھے ہیں انہیں بھی آپ وزٹ کریں، اور جو ڈسپلن کی صورتحال ہمارے جلسوں میں ہوتی ہے اور کارکنان کے حوالے سے انتظامات کا جو خیال رکھا جاتا ہے، چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہو، پانی کے حوالے سے، دیگر سہولیات کے حوالے سے ہو، میرے خیال میں کوئی بھی انصاف سے دیکھنے والا شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے جلسوں میں ورکرز کے ساتھ جس طرح عزت اور احترام کا رویہ رکھا جاتا ہے کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. تو میرے خیال میں جو میکسیمم آسانی مہیا کی جا سکتی ہے ورکرز کو وہ کی جا رہی ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ کوئی اور جماعت اتنا بھی نہیں کر سکتے. حسین صاحب وقت بھی میرے پاس ختم ہو چکا ہے. یہ تھا آج کا اسپیشل پروگرام مال روڈ سے عوامی تحریک کے دھرنے سے. اللہ حافظ.